हार्ट ब्रेकिंग भी था, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल मोमेंट वही था। मुझे याद है वो वक़्त कि मेरे अंकल उस टाइम पे मेरे ऑफिस आए। ही वाज़ लाइक कि क्या किया, कैसा चल रहा है? आई शोड हिम ₹500। बोला क्या? मैंने कहा फर्स्ट इनिंग। बोला व्हाट? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I arrived but host for this particular podcast, which is about Kashmir Real Estate podcast, powered by Kashmir Real Estate Production. We are into this podcast for the first time, and we are trying to capture the real estate of Kashmir, and it's going to happen for the first time. And we are going to give the information about real estate and the right knowledge about real estate here in Kashmir for the people to understand what real estate is. This podcast will be all about knowledge, fun, and we will try to gain some content from our guests. And for the today, we have the first guest with us, and that will be Mr. Tahir. So talking about Tahir, Tahir has been into this business from last a decade now. And when I say in Kashmir, it's been more than 8 years he's into this business. Tahir has a very magical imagination about constructing a plot into a right monument, or let's say a legacy, which is all about constructing a plot, a barren plot, into a good structure, which is desired by the people as a dream home. So when I talk about Tahir, Tahir is into interior design, he's into architectural design as well as into construction. So let's start with Tahir today, and let's see how we can get the knowledge about real estate engineering and about the technicalities by developing a land into a good structure. Starting with Tahir, Tahir, very warm welcome for this particular podcast. We are today here to just get a knowledge about the designs, the interior designs, and the architectural design about the house. So just give us a brief introduction about yourself so that we can get an idea who you are actually. ओके, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपने तो आधी स्टोरी मेरी बता दी। टॉकिंग अबाउट माय कंपनी, इट्स बीन फ्रॉम 2017 विद एक्चुअली पहले डिफरेंट नेम था, फिर एक्चुअली मेरा ही नाम चला, मतलब ऑन सोशल मीडियाज एंड एवरीथिंग, तो मेरा नाम ही मैंने फिर ब्रांड बना दिया। आई क्लोज्ड माय प्रीवियस कंपनी, but alhamdulillah, Allah ke fazlo karam se, today I have a good team of architects, interior designers, and a construction team, and this is what it is. Okay, so talking about what inspired to get into real estate, because as I see back in 2016, 17, real estate was not a big brand or not a big industry here in Kashmir. So what inspired to get into this, and what were the challenges that you have already faced in this particular industry? My first inspiration was my father actually. Okay. He is into real estate. तो इनिशियली चीज़ें समझ नहीं आती थी कि क्या है, कैसे होता है, बट जब थोड़े बड़े हो गए तो चीज़ें समझना स्टार्ट हो गया मैं कि क्या है, किस तरीके से है। बट बचपन से ही कुछ चीज़ें मैं नोट करता रहा था कि ये चीज़ रियल एस्टेट में होनी नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ मतलब झगड़, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर थोड़ा रियल एस्टेट में ऐसा एक मॉड्यूल बना है, ऐसी एक ओल्ड स्कूल इंडस्ट्री थी जहाँ पर झगड़े, बहुत सारी चीज़ें, मिसमैच, वो सब चीज़ें होती थी। तो बट इट वाज ओके। बट वंस आई जब मैं टेक्निकल चीज़ें पढ़ने लग गया, लाइक माय एजुकेशन एंड ऑल, फिर उसके बाद मैं रिलेट करता था कि किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है, इन चीज़ों को मतलब पाइल अप कर सकते हैं, कुछ एक प्रोफेशनल वे में ले आ सकते हैं। आई थिंक कि चैलेंजेस देयर आर, मतलब बहुत बड़ा लिस्ट है चैलेंजेस का। कश्मीर की अगर बात करें, अनप्रोफेशनल बहुत ज़्यादा माहौल है रियल एस्टेट में। इनफैक्ट इफ़ यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर इनटू दिस मार्केट, आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज माहौल ही वैसा है तो असरात तो उसके होंगे, राइट। तो वैसे आपसे भी यू कैन एक्सपेक्ट कि नहीं, टाइम आने पे मैं भी कुछ प्रोफेशनल बिहेवियर मेरा भी मार्केट में आएगा, अनटिल एंड अनलेस एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में आए कि जो एक प्रोफेशनल माहौल बनाए। नंबर ऑफ थिंग्स लाइक आई विल टेल यू, मैंने अभी झगड़े की बात की तो मैं एक सिंपल सी बात करूँ, एक प्लॉट है छोटा सा, तो इसके पीछे कभी किसी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट, वो ये सब डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो एक प्रोफेशनल चीज़ नहीं होती है।
तो क्लाइंट भी वहां से बड़ा इरिटेट होता है। और एक वो सबसे बड़ी चीज, इमेज भी रियल एस्टेट एजेंट्स की वही बनी है कि कशिर पे यह द्राल तो अतरूजो हसान है तो इट्स बेसिक बोलते हैं ना, एक वो कहावत सी बन गई है ना। सही। तो ये कैसे बना, लोगों ने खुद से तो नहीं बनाई ना, तो इसका एक बैकग्राउंड है। तो वो चीजें चैलेंजिंग है एंड वो लोग अभी भी मार्केट में काम कर रहे हैं विद द सेम बिहेवियर। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज एंड दे हैव, मतलब एक स्केल उन्होंने पकड़ा है मार्केट में। तो ऑब्वियसली बात है वहां पर थोड़ा सा जो प्रोफेशनल बंदा आएगा तो वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करेगा ही करेगा वहाँ पे। ताहिर, मैंने इससे अब भी एक बाहर से, जैसे मैं बाहर से यहाँ आया हूँ कश्मीर में ये रियल एस्टेट करने के लिए, यू हैव आल्सो वर्कड आउटसाइड एंड देन यू वर हैविंग एन इंट्यूशन दैट मैं कश्मीर को कुछ दूं, कश्मीर में स्टार्ट करूं। कश्मीर में आने के लिए आप मेरे से पहले 8 साल आए हो इस मार्केट में, सो यू फेस द मेन चैलेंजेस। अभी तो मैं थोड़ा हो गया है ठीक, इंस्टाग्राम आ गया है, बाकी चीजें आ गई है, बट अभी हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में कुकू स्टाइल भी है या बाकी लोग भी है इसमें मुनव्विस जो इसमें काम कर रहे हैं। बट अब देखा जाए कि जो आपकी चैलेंजेस थे जब आप बाहर से यहाँ आए, तो आप किस इंटेंशन से आए यहाँ पे, आपका क्या था दिमाग में कि मेरे को कश्मीर में ये करना है? क्योंकि तब हम देखेंगे बैक देन कश्मीर में उतना डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर को अहमियत नहीं देते थे, हर कोई खुद बन जाता था। दैट्स हाउ द कश्मीर हैज बीन, अभी भी होगा। बट हम अगर पुराना देखेंगे, पीपल हैव कम अप and you started this as an industry, as a professional industry, and what were the main challenges? मतलब कुछ चैलेंज आपके ऐसे थे जो आपने चेंज किए या अभी भी वो चल रहे हैं? अगर डिजाइनिंग की बात करूंगा मैं, तो चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी मेरे लिए। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जिस इंटेंशन से मैं आया था ना, एक टाइम आ गया कि मैंने सोचा नहीं भाई मैं बाहर चला जाता हूँ, आई कैन नॉट, मैं इस बिहेवियर के साथ यहाँ नहीं रह सकता। आपसे एक सवाल है कि फर्स्ट डिजाइन कमर्शियल का था, व्हाट इज द अमाउंट जो मुझे मिला होगा फर्स्ट? कोई गैस बता दो। जिस हिसाब से आप बोल रहे, मतलब जिस हिसाब से मैं आया हूँ, अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो दैट विल बी ह्यूज। पर हम देखेंगे कश्मीर के हिसाब से, सो इट विल बी लेट्स से 10 लाख ऑफ एन अमाउंट। नहीं, कमर्शियल प्रोजेक्ट इज अ बिग प्रोजेक्ट, राइट? ओके ओके, नहीं उतना भी बड़ा नहीं था, इट वाज नॉट दैट बिग बट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। चलो एक और गेस कर लो। ओके लेट्स, अगर आपने मुझे इतना डिमोटिवेट किया सो आई विल से 1 लाख। ये भी बहुत ज्यादा है। वाओ, 500 रुपए। माय गॉड। बट हाँ, हार्ट ब्रेकिंग भी था, लेकिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल मोमेंट वही था। मुझे याद है वो वक्त कि मेरे अंकल उस टाइम पे मेरे ऑफिस आए। ही वाज लाइक कि क्या किया, कैसा चल रहा है? आई शोड हिम 500 रुपये। बोला क्या? मैंने कहा फर्स्ट इनिंग। बोला व्हाट? बोला किसने दिया? मैंने कहा जिस किसी ने भी दिया, दिस इज माई फर्स्ट अर्निंग। उस दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने खुद को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन है, तो चीज़ें मैंने सोचा कि अगर या तो मुझे अभी भागना है सिचुएशन से, या फिर अल्लाह की तरफ से ये कोई आजमाइश है कि देखते हैं जिस नीयत से मैं यहाँ आया हूँ क्या मैं आगे चलूंगा कि नहीं। मैंने उसी दिन सोचा कि एक वक्त आएगा, यही बंदा मेरे पास आएगा, इफ आई विल कोट हिम 1 लाख रुपीज, ये मजबूर हो जाएगा मुझे देने के लिए। एंड ऐसा हुआ भी। आप लोगों ने अक्सर ड्रामास वगैरह में ये सब देखा है ना कि वो सब होता है, मेरे साथ डिट्टो यही चीज हुई। मैंने उसे एक्स अमाउंट मतलब बताया एक्स अमाउंट में लूंगा, वो मजबूर था मुझे x+1 देने के लिए। ओके, दैट वाज अ टाइम देन। वो एक टाइम था, लेकिन इट टुक मी अ लॉट ऑफ हेडेक्स। मतलब आई हैव अ माइग्रेन इशू, तो वो माइग्रेन भी काफी ये भी है। तो लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई वाज अलोन इन माय कंपनी, जो काम करता था। आई हैड नो अदर पार्टनर, नो अदर, मैं अलोन था। तो उस टाइम पे अल्लाह के फजल से जब चीज़ों को मैंने थोड़ा प्रोफेशनली आगे चलाया, सर्विसेज वैसे दी, पहले कम प्रोजेक्ट्स थे, फिर चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया मैंने मार्केट में। द फर्स्ट चैलेंज आए जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है चीज़ों की। तो जब मैंने देखा कि यार मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो इनके पास तो नॉलेज नहीं है। सबसे पहले ना बीमारी को ना इंट्रोड्यूस कराओ कि बीमारी है क्या, राइट? उसके बाद उसका इलाज बताओ। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने 2017 शायद या 2018 में, तो आई यूज्ड सोशल मीडिया। ओके, उस टाइम पे कोई भी इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था।
तो न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा एड्स आते थे, ऐसे ऐसे है। तो मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक स्टूडेंट को दिया। मेरे वीडियोस पे 100, 200, 1000, 1200 व्यूज आते थे, एंड जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, दैट वेंट 1.2 मिलियन। वाह। तो फिर मैंने कहा नहीं, मार्केट है, लोग देखते हैं। हालांकि उसमें इतना खास कुछ था नहीं, बेसिक था। तो वो बेसिक चैलेंज, फिर मैंने सोचा नहीं, द फर्स्ट प्रॉब्लम जो डिजीज है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली अगर इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आई विल फेस द चैलेंजेस। तो मैंने फिर चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। लेकिन राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम चीज़ों, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कश्मीर के मौसम के हिसाब से, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, तो अगर उन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें अगर उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जो फ्यूचरिस्टिकली अगर हम रियल एस्टेट को देखेंगे ना, तो इससे ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना और अडेप्ट करना मार्केट में, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की बात हो या वट एवर देयर इज, एस्थेटिक्स एंड जो कल्चरल चीज़ें हैं रियल एस्टेट में, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो आई थिंक रियल एस्टेट का थोड़ा मसला पड़ जाएगा। बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ की कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब उस स्केल की काम करते हैं या उस स्केल का वो लेके जाते हैं, मिनिमम है। एंड आई डोंट, मुझे कभी समझ नहीं आता वाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने, जो रियल एस्टेट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस की। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारे घर विंटर्स में फ्रिज हो जाते हैं, है ना, हमें फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी दूध रख दो, सुबह फ्रीज होके आप उसको, है ना। तो इंसुलेशन का नॉलेज नहीं था, यूपीवीसी विंडोज का नॉलेज नहीं था। मतलब आई एम नॉट टॉक अबाउट फ्यू पीपल हैड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों को नहीं था। वो मिसकंसेप्शन था। और जो हमारे पुराने घर थे, उनका एक अलग मेथड रहता था कंस्ट्रक्शन का। हम मॉडर्न तो हो गए, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन मेथड्स वही हैं, पुराने हैं। और अभी उस टाइम पे 2 फीट की वॉल्स हुआ करती थी, 18 इंच की वॉल, 9 इंच में वो सेम सोच के लगते हैं कि भाई इसमें ठंड नहीं लगेगी, वो नहीं होगा। बट देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस इन दिस पार्ट। तो अभी कंस्ट्रक्शंस में हमने लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, बट अभी बहुत सारी चीजें अगर वो नहीं किएंगे ना, मतलब फ्यूचरिस्टिकली मुझे डर लगता है कि भाई यहाँ बहुत डिजास्टर्स होने वाले हैं। ओके, माशाल्लाह, ब्रीफ नॉलेज। एक सिंपल सा सवाल रहा है, क्योंकि एक बिजनेस एजेंसी ओनर हूं मैं, सो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं मार्केट में। सो व्हाट वाज एन अमाउंट दैट यू स्टार्टेड योर बिजनेस विद? आपने क्या दिमाग में रखा था, कितना अमाउंट रखा था, और किस अमाउंट से आप मार्केट में आए थे? क्योंकि अब एक बिजनेस ओनर जो आता है मार्केट में, वी सी दैट व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज वी गो विद फ्री। जेब में कुछ नहीं हो, हमें कोई प्रोडक्ट लाना नहीं है, हमें कोई प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, सो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट। बट एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एजेंसी ओनर, आई थिंक दैट देयर शुड बी अ मनी। सो व्हाट वाज द मनी दैट यू स्टार्टेड विद? वेल, यू टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग वगैरह जो अपने फर्म में एक स्टार्ट किया, उसमें कितना अमाउंट लेके आप दिमाग में आए थे, एंड हाउ डिड इट गो? Another question to you. Okay. What do you expect? कितना क्या होगा? See, अगर आप मेरा देखोगे, I came up with a good lump sum amount. I won't say money, but it was a more than 10 lakh. Just started with. I earned the money. बहुत है, 10 लाख तो बहुत है। Because see, if we see right now, अभी हम प्रोडक्शन देखेंगे, मार्केटिंग देखेंगे, ये चीजों के लिए जो पैसा हम दे रहे हैं एक इंस्टाग्राम को बनाने के लिए, बिकॉज वी ट्राई टू गिव द पीपल द राइट नॉलेज, तो वी इन अ राइट वे। क्योंकि आजकल आप देखोगे तो ये चीजें, हर किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास एक माइक है, बट हम देखेंगे एक माइक का कॉस्ट 5,000 रुपया, एक कैमरा का कॉस्ट 2 लाख रुपया है। So these things are a big cost to me, and in real estate we have to go for site visits. अगर पेट्रोल का दाम देखेंगे, वो भी एक अच्छा खासा रेट मिलता है, तो हम बाइक्स पे नहीं जा सकते क्योंकि विंटर्स है, सो वी हैव टू अफोर्ड अ कार एट दैट सेम टाइम। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, छोटी छोटी चीजें, या ऑफिस स्पेस चाहिए, उसके लिए 10,000 रुपया पर रेंट चाहिए, या ऑफिस स्पेस को सेटअप करने के लिए एक पैसा चाहिए। सो इन दैट टर्म्स आई थिंक मोर देन 10 lakhs आई हैव इन्वेस्टेड ऑलरेडी within just last 4 years, but sorry, last 4 months. When I say, but what was the money that you started with that time? Well, okay. मैंने एक कैबिन सेटअप किया, एक पीसी लिया। आई थिंक नॉट मोर देन 2 lakhs. Wow. Not more than 2 lakhs. That's it. बहुत ही कम में मैंने स्टार्ट किया। Have you ever thought of an investor कि मैं एक इन्वेस्टर को लाऊं, उससे पैसा लूं, वो पैसा यूज करूं, या आपके जो अपने फंड्स थे that were getting drained, आपको ऐसा कभी लगा अपने बिजनेस में? Have you ever thought about that? वो ऐसा थॉट नहीं, देखो,
लॉसेस की अगर बात करूं मैं, वो हम्म। तो होता रहता है, आई हम्म। डोंट माइंड, वो मैं बिजनेस में, वो मैं आई अंडरस्टैंड दैट। हम्म। बट द थिंग इज दैट कि मेरे जहन में पहले ही था कि मैं पहले एक ब्रांड क्रिएट करूं, हम्म। फिर अगर मेरे जहन में कोई प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आई हैव समथिंग इन माय माइंड, फॉर दैट आई नीड अ इन्वेस्टर्स, मुझे उसके लिए चाहिए Right. जिनको एक, अगर कोई मेरे पे इन्वेस्ट करेगा उसको एक प्रोफेशनल मतलब बिहेवियर मिलेगा कि नहीं भाई सामने कंपनी है, दे विल हैंडल थिंग्स, Right. मैं किसी सही जगह पे पैसा लगा रहा हूँ। हम्म। स्टार्टिंग में मेरे जहन में ये थी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक आगे के लिए, आगे के लिए। जो कि मैं अब करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे बस ये था कि एक चीज क्रिएट करना, एक इंडस्ट्री क्रिएट करना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से अभी तक हो गया। माशाल्लाह। मेरा उतना वो नहीं था कि मैं 10-15 लाख रुपए, हाँ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे वालिद साहब की स्पेस थी, जो रूम था, उनका ऑफिस था बगल में, सेकंड वाज माइन, तो वहां पर प्रॉपर्टी डीलर्स वो सब आते रहते थे, तो Okay. उनका उनसे भी कुछ सीख साख के मुझे समझ में आता था कि क्या करना है आगे जाके, मुझे क्या, मैं पॉइंट्स तब से लेकर अब तक कनेक्ट करता आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो आई उसे ही 2 लाख से ही स्टार्ट किया, उससे ज्यादा नहीं। Wow. एंड आई हैव यूज्ड माय फोन Uh-huh. फॉर द मार्केटिंग पार्ट एंड दैट्स इट। Okay, Tahir bhai, I have a very good question. If I look back, the first project that you have done till now, was that a masterpiece or you have come a long way from then? Like, वो सबसे बेहतरीन आपने प्रोजेक्ट बनाया या तब से आपने बहुत कुछ इवॉल्व किया है in terms of design, in terms of construction? वेल, आर्किटेक्चर में एक चीज़ है कि अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ तो मेरा अगला इससे अच्छा होने वाला है, वो गया, उससे अगला इससे अच्छा होने वाला है। मैं वाव फैक्टर तो नहीं दूंगा, बट या जो चीज़ें मैंने तब इंट्रोड्यूस की थी उसमें से कुछ एलिमेंट्स अभी भी मार्केट में ट्रेंडिंग है। Okay. मैंने बहुत एनर्जेटिकली पहले प्रोजेक्ट्स किए और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने की कोशिश की कि ये मुझे आगे ले जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से वो चीज़ें अभी भी राइट नाउ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। Okay, so now let's dive into this Kashmir real estate, the best topic which is close to your and my heart. So when I say in terms of construction or the development, what are the biggest challenges here in Kashmir in terms of developing a house or a structure on a particular piece of land? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल डोंट कंसल्ट प्रोफेशनल्स। लोग प्रोफेशनल्स को कंसिडर नहीं करते जस्ट टू सेव, मतलब फ्यू पेनीज। आई विल से फ्यू पेनीज इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज जो एक अमाउंट होता है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। उसके लिहाज में एक प्रोफेशनल की फीस उसमें से कुछ नहीं होती। जस्ट टू सेव दैट, मतलब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इस चीज़ में। पीपल सेव अ लॉट ऑफ, मतलब वो कुछ, सो नॉट लॉट ऑफ, बेसिक अमाउंट बचाते हैं, लेकिन जो डिजास्टर वो लोग अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं, फिर एट द एंड आते हैं प्रोफेशनल्स के बाद, भाई ये हो गया वो हो गया, देन उसके बाद उसका जो रेनोवेशन, आई से एक नए प्रोजेक्ट का ही रेनोवेशन हो रहा होता है, वो पहला तो उसका मतलब आई से उनका पहला ही लॉस होगा, फिर उसके बाद कितनी उसमें रेनोवेशन होगी, कितनी ही चेंजेस होंगी, फिर उसके बाद उसका एक अलग लॉस होगा, एंड उस टाइम पे जो प्रोफेशनल आपको फीस लेगा दैट इज डबल द कॉस्ट जो आपको प्रीवियसली वो कोट करता था। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि फ्यूचरिस्टिकली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें प्रोफेशनल्स की रियल एस्टेट में किसी भी हालत में ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं लेंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस को उतना ग्रो होते हुए नहीं देखेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, या जो आपकी लैंड प्रॉपर्टीज़ हो, या जो कुछ भी है जो आजकल रियल एस्टेट में हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं लेते, तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। बिकॉज जो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, देयर आर यंगर जनरेशंस कमिंग अप जो कि अपना रियल एस्टेट बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एंड आई विल गिव यू श्योरिटी कि वो लोग इसमें बहुत आगे जाएंगे। एंड जब प्रोफेशनल्स आ गए तो जो पुराने थे, ऑब्वियसली बात है, उनके पास कोई जाएगा नहीं। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क लिखा है, लेकिन एक सेगमेंट आता है टाइम पे, भाई साहब हमें पुरानी गाड़ी नहीं चलानी, हमने मतलब मारुति बहुत चला ली, अब सब किसी पे फॉर्च्यूनर है, ये है, तो हमें वहां जाना है। तो एक सेगमेंट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो उस फॉर्च्यूनर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अभी मार्केट में वैसा कुछ हो रहा है। Okay. चैलेंजेस थी बट अभी होने लगी हैं, सॉर्ट होने लगी हैं। Okay. As we have discussed the challenges now, I want to just say how can a better design address these challenges in Kashmir? When I say the design part
of yours, how we can just get out of these challenges which are already in the market as you discussed. मतलब हमारे जो चैलेंज आते हैं एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, एक डिजाइनर कैसे इन चैलेंज को एड्रेस कर सकता है या इनको एलिमिनेट कर सकता है? ऑब्वियसली बाय इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स, हम्म, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने जो चैलेंजेस फेस की वो मैंने फिर ख़त्म की बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई प्रोफेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग इन रियल एस्टेट। तो तब जाके चैलेंजेस कम हुई, जो कि मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कंसल्टेंट्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए चीज़ें, तो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगी। okay. इट्स वेरी सिंपल। Okay, see, in my experience, I have seen that the critical designs has added the value to the properties. क्योंकि मैं real estate business में ही हूँ and I have almost worked with hundreds of properties which I have closed. So I see that जहाँ पे design अच्छा हो, उस property का value ही बढ़ जाता है. So that उसका aesthetics, उसका carpet area, उसके अंदर like the design, the sustainability जो उसके अंदर होती है, जो कि इंटरनेट डिजाइन ने डाला होता है, एक डिजाइनर ने डाला होता है, and that adds the value to it. What's your say like working with the professionals like us कि आप उनमें देख रहे हो कि एक प्रोफेशनल जो होता है जो बेचने के लिए आपका जो डिजाइन होता है कितना एक मायने रखता है? मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि जब भी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमने कॉन्ट्रैक्टर से घर लिया, मैं उसमें कुछ चेंजेस चाहता हूँ। तो ये चेंजेस क्यों हैं? मान लो उसने 1 करोड़ खर्च किया, 1 करोड़ खर्च करने के बाद भी उसको चेंजेस लगेंगी, यानी कि वो प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू नहीं रखती ही नहीं थी, उसको खरीदना पड़ा, वो फिर भी उसमें चेंजेस चाहता है। तो ये चेंजेस मतलब इट्स एक ह्यूज अमाउंट है जो कि लॉस हो रहा है। रियल एस्टेट क्या है कि उसने अपना प्रॉफिट कमाया, आगे जो हो सो हो, लेकिन उसको आगे भी तो कमाना है। एक रेफरल इमेज होती है कि भाई मैं अगर क्लाइंट हूं, मैं बोलूँगा नहीं इसने मुझे प्रोडक्ट अच्छा दिया, आई विल सजेस्ट 10 पीपल। ऐसे मैं करूंगा नहीं यार, इसने एक नॉर्मल घर मैं नहीं लूंगा, मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करूंगा, यानी कि उसने अपना मार्केट वहीं पे ब्रेक कर दिया, राइट। तो डिजाइन का यही एक मतलब मेन आई से बेनिफिट है कि ये आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्पेस प्लानिंग, ये प्रॉपरली इस चीज को, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी जाएगी, स्पेस प्लानिंग इस अकॉर्डिंग होती है कि जो कि फ्यूचरिस्टिक होती है कि कल को 10 साल 20 साल बाद भी इसमें कोई चेंज करने की सोचे नहीं, उसको ऑलरेडी वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल एस्टेट बिजनेस की जो भी एजेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कि दे शुड कंसल्ट architectural designers for their projects. The role of design in Kashmir real estate, when I say that, so what are the main elements of a design that a person should know while building a first construction? Okay, number of things are there. First thing is the structure part, the insulation part. These two things are very important, and the third important part is the interior designing of your house. What I have seen people wasting huge amount of money on interior design while they don't consult any professional. So it's very important that you go for the interior designing part also. And these are the three things: the structure, the insulation part, like for the energy efficiency, and for thermal insulation, for acoustic insulations, and it's very important. And the last one is the interior designing part. So what is the advice that you would like to give for the first home buyers or who is constructing the home for the first time? Or a second question will be, what will be the first advice or the advice for the people who are doing a commercial spaces here in Kashmir? Well, okay, 2 questions, mashallah. The first thing is that actually these are 3 questions. Okay. अगर कोई घर बना रहे हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, हर और अपना होमवर्क करो पहले कि मैं अगर घर बना रहा हूं, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स अपनी पहले ही डिसाइड करके रखो विद योर फैमिली, डिस्कस इट विद योर फैमिली ओनली, बिकॉज रहना उन्हीं को है। हम अपना घर मेहमानों के लिए बनाते हैं कि मैं गस पगा पोस्चुन तमिस गस हॉल आसुन, हेर कंत गस हॉल आसुन, तम पत गस छतस पेट हॉल से कत रोज बरोस को अगर मेरे है ना, these things happen. तो Agree. तो ये एक चीज है, घर अपने लिए बनाओ, मेहमानों के लिए नहीं। मेहमानों का ठीक है, ड्राइंग रूम एक स्पेस है, ग्राउंड फ्लोर में रखो, उसके बाद एक हॉल रखो, दैट्स इट, मोर देन इनफ, ठीक है। प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, हर एक होमवर्क करो घर पे, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे होमवर्क करो, विद फैमिली डिस्कशन करो, हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, एक अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लो, उनसे पहले ही चीजें सॉर्ट करके रखो कि जो हम ऑन ग्राउंड करें कि उसमें उसके बाद कोई चेंज ना हो।
आप अपने घर का मॉडल देख सकते हैं कि मेरी कहाँ पर कौन सी एलिवेशन आ रही है, किस तरीके से स्पेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है, कहीं कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है. दिस इज द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हर एक इंसान को जो भी घर बना रहा है, इट गोज फॉर कमर्शियल ऑल्सो, इट गोज फॉर रेजिडेंशियल ऑल्सो. अब ये हो गया ये सेगमेंट. तो दूसरा आता है कि अगर कोई घर खरीद रहा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले स्पेस प्लानिंग. डोंट गो विद द एलिवेशन. अश शक्ल वशित वनान आहा मकान किन कथ सुल अंदर तम कथ हरावान. दिस हैपेंस. तो अंदर जाता है, फिर हमारे पास आते हैं सर मकान जबरदस्त मगर मसलू आज गस ये दरवाजा आसन कहीं, आज गस ये आसन हो आसन वट ABCD. तो उसके बाद उसमें वो वैल्यू ही खत्म हो जाता है. वी हैव लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स. अस कॉलमन पे मकान बनावा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर तथ यूत लब फटराओ त्यूत कमजोर गसान. एंड मुझे फिर उस टाइम पे बहुत फील भी होता है ये चीज़ कि यार इसने 1 करोड़ खर्च किया, 50 लाख खर्च किया, जो भी खर्च किया, आप ये फिर से उस पर, और ऊपर से उसका वैल्यू डाउन होता जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर वाइज. सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर देखो कि उसने स्ट्रक्चर में चीजें क्या इस्तेमाल की. अगर वो आपको एश्योरिटी देता है, लिख के लो कि भाई मुझे इसमें कल को फलाना फलाना इश्यूज नहीं होने चाहिए. एक प्रोफेशनल को हायर करो, भाई साहब मुझे ये घर खरीदना है, मुझे ये देखो क्या ये ठीक है, लायबल है, मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये ठीक है, आप मुझे बताओ साइजेस वगैरह, कल को मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैं कम से कम 20-25 साल का सोच रहा हूं कि इस घर में कोई चेंज नहीं आए, कि मेरे बच्चे कल को हों वो भी इसी घर में कंफर्टेबली रहे, इसमें कोई चेंज नहीं है. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी ऑन हाउस एंड ऑल. ये कमर्शियल के लिए भी है और रेजिडेंशियल. ऑब्वियसली फॉर रेजिडेंशियल ही हैज टू चेक द प्रोज एंड कॉन्स इन मतलब उसके अपनी चीजें हैं, रेजिडेंशियल के लिए अपनी चीजें. दैट्स इट. ओके, सो ताहिर भाई, मैंने देखा है कि मैं भी इसी फील्ड में हूँ अब. सो आई हैव सीन पीपल कम अप एंड व्हेन दे कम फॉर द प्रॉपर्टी विजिट्स, सो डिज़ाइन क्यों बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं देखता हूँ कि जब हम औरतें देखेंगे मोस्टली किचन्स एंड दे वांट द ड्राइंग रूम्स, और जो आपने भी बोला कि हम मेहमानों के लिए बनाते हैं, तो ज़्यादातर ये औरतें ही देखते हैं. तो मर्द के लिए क्या होता है कि मेरा बेडरूम कैसा होगा, ठीक है, या हम देखते हैं एस्थेटिक्स, फॉर एग्जांपल सनराइज कहाँ से हो रहा है, सनसेट कहाँ से हो रहा है. डू वी गेट दीज थिंग्स? आपके पास कोई, क्योंकि मैंने देखा है कि आई हैव कम अक्रॉस द पीपल इन कश्मीर इटसेल्फ. आई जस्ट डिड अ विजिट. सो देयर वाज अ बिग हॉल इन द फर्स्ट रूम, like in the first floor. So when I get into it, the buyer was like, भाई मैं यहाँ पे एक थिएटर बना सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना सकता हूँ टेरेस पे, क्या मैं टेरेस पे एक ओपन एरिया बना सकता हूँ. सो देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच हैव कम अप टू मी. क्या आपके पास भी ऐसे आते हैं लोग कि नहीं मुझे अब स्विमिंग पूल चाहिए सामने, या मुझे एक अपनी बालकनी में एक एस्थेटिक ऐसा चाहिए कि मुझे सनराइज भी दिखे, सनसेट भी दिखे? यस, आई सी मेनी क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं. बट ऐसे क्लाइंट्स वो हैं जो कि लाइक आई विल से नॉट NRI, बट जो बाहर रहते हैं या जॉब करते हैं, उनको इस टाइप की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं. लेकिन मसला एक ही चीज़ होता है कि उनके पास ज़मीन कम होती है. वो मोस्टली मैंने देखा उनकी ख्वाहिशात अच्छी खासी होती हैं कि मेरे घर में स्विमिंग पूल हो, मेरा जिम हो, होम थिएटर हो, समर रूम, विंटर रूम, द चिल्ड्रंस रूम, होम थिएटर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो वो बताते हैं. फिर हम उनके लैंड को एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना हम एकोमोडेट कर पाएंगे. स्टिल ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज लॉट ऑफ थिंग्स. फिर उनका मूड चेंज हो जाता है, फिर वो वही रेगुलर हाउस बनाते हैं. बट देयर आर पीपल लाइक दिस जो ये रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं. सो व्हेन आई से डिमांड इज देयर फॉर दीज थिंग्स, यस, डिमांड इज देयर. I have seen outside, when I go outside, there are property developments, like आपके housing developments होते हैं, plot developments होते हैं, जहाँ पे कि आपका एक infrastructure बन जाता है, लोग जो फिर amenities बन जाती है, जो हर एक लोग के लिए जरूरत है. क्या हमें कश्मीर में वो amenities चाहिए? Do we prefer like यहाँ पे भी plot developments हो, societies बने, या हम छोड़ो अपार्टमेंट्स तो यहाँ पे भी बना, क्योंकि हमारे पास बहुत जमीन है अभी यहाँ पे, और सस्ती उतनी महंगी तो नहीं है. बट अगर डाउनटाउन जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ सकता है. बट व्हेन आई सी आउटस्कर्ट्स ऑफ द अर्बन लाइक अप टाउन जो यहाँ पे है, उतना महंगा अभी है नहीं. सो वी कैन इजीली गेट एन लैंड इन कश्मीर. बट क्या ये जरूरत है, ये एमिनिटीज हमें कश्मीर में? क्या आपके पास लोग ऐसे आते हैं क्योंकि उनको एमिनिटीज चाहिए, बट देयर विल बी कॉमन एमिनिटीज, क्योंकि ये तो अब जैसे आपने बोला कि जमीन नहीं चाहिए, जमीन इतनी होती नहीं है ये चीजें बनाने के लिए. बट जब हम कॉमन एमिनिटीज की बात करें, इज देयर अ नीड फॉर अ कॉमन एमिनिटीज हियर इन कश्मीर? यस, आते हैं लोग उस चीज़ के लिए भी. आई थिंक कि जो आप प्लॉट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं, पीपल हैव दैट इन देयर माइंड कि ऐसा करना है. देखो, प्लॉट डेवलपमेंट की बात करूं तो आई थिंक कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स है वो अपने से खुद ही करते हैं. आई डोंट थिंक कि वो उतने
5% जो प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करते हैं प्लॉट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दे थिंक दे कैन डू इट देमसेल्फ। लेकिन एक प्रोफेशनल मतलब ही हैज अ विजन कि भाई 50 साल आगे क्या होगा, यहाँ पर अगर कल को कम्युनिटी बनती है तो क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल का वो विजन रहता है, एक लोकल लेमैन का ऐसा नहीं रहेगा। इनफैक्ट ही इज इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, स्टिल वो उस लेवल का नहीं सोच सकता। रिक्वायरमेंट इज देयर, बट मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल्स की हेल्प किसी भी हालत में लो इन चीज़ों में, ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। Tahir, I will just share one quick story to just for the design. I was in Dubai and there were, जब आप देखोगे रियल एस्टेट बूमिंग है दुबई में, बट वहाँ पे एक डिजाइनर था, he was all the way from German and he has designed one nice apartment, ठीक है, and I will tell you within 6 hours that apartment was sold, just the design was the best. डिजाइन में उसने क्या किया था, दैट वाज अ डिफरेंट डिजाइन बट एवरीवन वाज यूजिंग इन रियल एस्टेट, सो दैट्स व्हाई आई सी दैट डिजाइन इज द मेन थिंग व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग और यू आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर योरसेल्फ. You need a right design to live there, or you need a right design to make it that particular to sell it in the market. Okay, that's a good like उसने बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया है, Right. वर्कआउट किया है, तभी जाके ऐसा पॉसिबल हुआ. Right. तो यहाँ पर एक चीज है कि वर्कआउट मैं कहता हूँ कि दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायर है और जो सेलर है. बायर अपनी तरफ से वर्कआउट करे, सेलर अपनी तरफ से वर्कआउट करे. अगर सेलर जो है वट एवर ही इज, मतलब एजेंट है, जो भी है, ABCD जैसा भी है, वो एक प्रोफेशनली इस चीज़ को करता है, ऑब्वियस सी बात है बायर के लिए ये चीज़ बहुत इजी रहती है. उस चीज़ जैसे आपने कहा कि उसने क्या किया, तो उसने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो एकदम से बिक गया. तो मैं देखता हूँ कि एक प्लॉट पे या एक घर को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले 10 बंदे, फिर भी वो नहीं बिकता. क्यों? व्हाट इज द रीजन? हम जाते हैं, बोलते हैं यार ना यथ मंचुनी ये कहें, यथ मंचुनी हो कहें, यथ मंचुनी इस पेट कहें. दैट मीन्स कि वो उतना वैल्यू रखता ही नहीं है. जिस डिजाइनर ने वो जो अपार्टमेंट डिजाइन किया है वो उतना वैल्यू रखता था, तो एकदम से बिक गया. तो यानी कि आप एक ब्रेक दे रहे हो रियल एस्टेट में बाय नॉट कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स. उसकी वजह से आपको आगे फ्यूचरिस्टिक, आपका सिंपल सी बात है, आपकी इनकम ब्रेक हो जाएगी. राइट. आप एक प्रॉपर्टी तक कब तक लटका के रहोगे? आई हैव सीन पीपल, यार 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो इस चीज पे क्यों नहीं फोकस कर रहे कि भाई साहब व्हाट इज द रीजन, फेलियर क्यों हो रहा है. हमारा फेलियर होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, लुट गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गया सब कुछ. लेकिन वी डोंट फोकस ऑन आवर फेलियर्स. मैं अपनी बात करूंगा, व्हेन वी फेल वी वर्क आउट. What's the wildest design trends you have seen in Kashmir? Roof. Okay. Roof designing. Roof designing. So Yeah. that's been the wildest. Yeah, people follow मतलब things without knowing the like number of things in that, in structure wise and like aesthetics. They just see the roof somewhere, oh I need this in my house, so they put it, मतलब वो अपने घर में वैसे ही करते हैं, then it doesn't look aesthetically, उसको वैसा नहीं लगता, and उसमें structure wise lot of things are there. तो वो एक चीज मुझे लगती है कि It's the wildest design. वो चीज. So what's the one factor that you will just put it in your dream house? Comfort level. Okay. Comfort level in my home, because the thing is that our homes are not comfortable in winters, mostly in winters. So that's some I'll take care of that thing only. And I don't have any मतलब much requirements कि मैं aesthetically ये करूँ वो करूँ. एक comfortable home हो in winters, and that is the factor that I'll put in my house. So what's the one tip for the people who is building the first home here in Kashmir? Hire professionals. It's very important. It will value their money. Obviously, if उनका घर भी अच्छा रहेगा इससे. तो ताहिर साहब हम एक रैपिड फायर करेंगे क्विकली. इट विल बी लाइक 5 क्वेश्चंस. सो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट? Minimalist. फॉर्म और फंक्शन? Functional. वुडन फ्लोरिंग और मार्बल? Wooden. बोल्ड कलर्स और न्यूट्रल कलर्स? Neutral colors. मॉडर्न आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल डिजाइन? Traditional designs. So Tahir, when I say in Kashmir, we have seen that people tell brokers are just middlemen, but in reality, we are more than that. Just in terms of from buying a property till selling it, or even though constructing it.
brokers have played a larger role. So how do you see as a broker helping the developers or the designers in terms of succeeding that project? If it is a professional one, then obviously he'll help you in the futuristic approach of that particular project. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, जो एक ब्रोकर है वो एक मिथ जो है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स. ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ऐसा एक बिहेवियर रह चुका है. तो अगर प्रोफेशनल्स आते हैं ऑब्वियसली वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको आपकी प्रॉपर्टी का बता सकता है. Okay, so for our listeners, I just want you to tell them like why a broker or a designer or a developer is needed in terms of construction or in terms of real estate. Why we people are more important in terms of transacting or in terms of getting into this particular field? Well, obviously, if you are hiring broker or developer or whatever, for your project that's needed, it will save your money, your time, and it's more than that. So when I say it's like saving money, saving the stress, what they are going to go for the long run. Yeah, exactly. I think that there's a psychology behind it, and it saves a lot. It saves a lot. And then it's best for the people to hire us as an initial, not after the project, so that they can save the stress, they can save the time, and that's what I said. There's a psychology behind it. So obviously, before that. So let's talk about how collaborations can boom the real estate here in Kashmir. As we have seen that brokers and designers, how the synergy will work in terms of developing a land parcel or in terms of the boosting the real estate. तो जब दो बंदे कोलैबोरेट करेंगे, ब्रोकर और डिजाइनर या डेवलपर जब आपस में एक अलाइंड रहेंगे, तो वो एक डेवलपमेंट के लिए कैसा अच्छा रहेगा फॉर द ग्रोथ एंड ऑल. Well, very nice question. Obviously, the project will run smoothly and there will be no headache for anybody. Not for the broker, designer के लिए भी कोई headache नहीं होगा, for the developer उसके लिए भी कोई headache नहीं होगा. Developer का हमेशा ये टेंशन रहता है जो कि डिज़ाइनिंग पार्ट है वो सॉर्टेड रहे. ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें सॉर्टेड रहें तो ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. डिज़ाइनर के लिए प्रॉब्लम रहता है कि डेवलपर अच्छा हो, ब्रोकर अच्छा हो, कि आगे इसमें प्रॉब्लम ना आए. जब वो चीज़ें प्रोफेशनली स्मूथली हो रही हैं ऑब्वियसली उसके लिए, तो एक स्मूथ एटमॉस्फेयर, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर बनता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So what is the advice you will give to the investors or the home owners to get this team aligned together and at the initial stages? Well, it's a very nice question, and if the obviously the broker is the one who will align he has a good network. The first thing he needs to check if the broker is professional or not, and the connections he has, are they professional or not. So the first thing is check the broker professional behavior and everything, the professional work he is doing, and the connections he can tie up he has a good network, although he can make the collaborations. So when we say the initials should be to go with the broker, and from there he will get the right network whom he can consult, because they have an experience in the obviously they have a good experience. The professional one I am talking about, right? Make this as a key point, the professional one, right? No. So as we see in Kashmir, there are not that much professionals, because you have seen that. I'm not saying they are not professionals. They are experienced. Due to experience, they have a bit of network, they can do the business, but future is professional things, right? So for that you need a professional guy just to run the project smoothly without any headache. Got it. So I will just ask you the last question over here is, we have seen कि हम कश्मीर में देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, फायर इंसिडेंट्स हुए हैं या सफोकेशन के इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली. तो उनके लिए व्हाट्स द विजन ऑफ अ डिजाइन इन कश्मीर दैट विल बी बाय योर एक विजन आपका होगा कि डिजाइन कैसा होना चाहिए कश्मीर में. तो कैन यू जस्ट गिव अस an idea about it? Well, okay, that's much needed question. As you can see that जो अभी के रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे फायर इंसिडेंट, हमें विंटर्स में ये सब देखने को मिलता है, फायर इंसिडेंट्स हुए या सफोकेशन हुई, कहीं ना कहीं इसमें वो प्रोफेशनल कंसल्टेशन का एक सेगमेंट रहता है कि नहीं हुई है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी घर बना रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं या अपार्टमेंट्स बना रहे हैं या वट एवर यू आर डेवलपिंग, यू शुड हैव अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो कि इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखता है. फायर फाइटिंग इज द, जो मैं कह रहा हूँ कि रेजिडेंशियल में भी इसका एक सेगमेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वुड वर्क बहुत अच्छा खासा है घरों के अंदर. तो फायर फाइटिंग का सिस्टम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं ये अथॉरिटीज़ को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग परमिशंस के लिए जब
एनओसीज वगैरह क्लियर करते हैं, तो ये एक सेगमेंट रहना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचरिस्टिकली जो फायर इंसिडेंट्स हैं, इन हर घर का अपना एक सिस्टम रहे कि जब तक आपके पास फायर सर्विस वाले पहुंचे तब तक अपना इनका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए, कुछ हद तक वो फायर कंट्रोल कर पाए। इसकी वजह से एक चीज होती है, जैसे हमारे डाउनटाउन के एरियाज हैं, मान ली 5-6 घर इकट्ठे हैं, एक घर में इंसिडेंट होता है, अगर उसमें ये सिस्टम डेवलप हुआ है तो उसकी वजह से बाकी घर उसमें जद में नहीं आएंगे, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए भी एक टेक्निकल, एक प्रोफेशनल की जरूरत बहुत ज्यादा है। डिजाइन अगर हम उस लिहाज से देखें, इसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे का, लेकिन उसको उस लेवल के ऊपर लेके जाने का काम प्रोफेशनल्स का है। एंड आई थिंक कश्मीर अभी इस चीज में डेवलप हो रहा है, एंड व्हाट आई एम सीइंग दैट कि फ्यूचरिस्टिकली ये बहुत अच्छी एक लेवल पे, एक अच्छी स्केल पे आएगा इंशाल्लाह। सो ताहिर भाई, लाइक एज वी हैव सीन, हमारी जो ऑडियंस है, एक मिथ रहा है कि एक डिजाइनर के लिए हमें बहुत हेफ्टी अमाउंट चाहिए एक डिजाइन लेने के लिए। तो अब कोई रेंज बता सकते हैं कि एक डिजाइन, एक नॉर्मल सा एक होम के लिए क्या रेंज होनी चाहिए? व्हाट इज द रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम टू डिजाइन एंड टू गेट अ डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर होम? मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 500 रुपीज स्टार्टेड, तो 1 to 4% मैक्सिमम of the total cost. हाँ, of the total cost 1 to 4%. Okay. That depends on the consultant, how उनकी सर्विसेज कैसी हैं, तो accordingly he'll obviously charge। अगर आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सिंपल सी बात है 1 से 4 तक। आई डोंट थिंक 1 करोड़ में 1 लाख उतना मायने रखेगा उसके लिए। अगर उसका 1 करोड़ वैल्यूएबल बनता है just because of that 1 lakh rupees, I think he should invest. Okay. Not more than that. So just give us a quickly process from start to end for a home buyer for the designing terms. Home buyer or what? Or a home buyer or a person who is constructing a house. What will be the process for him from start to end for the design? Well, these are two questions actually. First thing is that for buyer, and second one who is constructing his own home. Well, for buyer, he has to check the everything, functionality, the design, the structure, everything he has to check so that the जो उसका घर है, तो जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो उसमें कोई चेंजेस ना लाए। Obviously, he is paying 1 CR, 2 CR, 3 CR for the property, and उसके बाद भी वो उस पे इन्वेस्ट कर रहा है। आई डोंट थिंक कि वो एक करेक्ट अमाउंट फिर पे कर रहा है, देन ही शुड पे लेस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पेइंग 3 CR और 50 लाख एक्स्ट्रा उस पर लगा रहा है, देन 50 लाख पहले ही कम कर दो भाई साहब, इसमें ये चेंजेस है, दीज थिंग्स टेक्निकली प्रूव कर दो भाई साहब, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट ऑब्वियसली ही हैज टू चेक ऑल द थिंग्स। सेकंड थिंग इज अगर कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग कि आप अपनी लैंड का सर्वे कराओ, वो सर्वे डिटेल्स आप किसी प्रोफेशनल डिजाइनर के पास लेके जाएं और प्रॉपरली हर एक चीज को मद्देनजर रखें। अपना होम वर्कआउट कीजिए कि मैंने घर पे या इस प्रॉपर्टी में, कमर्शियल में क्या क्या चीजें चाहिए, डिसाइड कीजिए। आइदर यू हैव पार्टनर्स और आप अलोन अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज को मद्देनजर रखो, वो रिक्वायरमेंट्स लेके प्रोफेशनल्स के पास जाओ। मेक श्योर आप वर्कआउट में जो आप होमवर्क करेंगे, आप ऑनलाइन रेफरेंसेस लें, जो भी आपकी चॉइसेस हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आप प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं। उसमें आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ख्याल करें, आर्किटेक्चरल इंजीनियर का ख्याल करें, आप इंटीरियर डिजाइनर का ख्याल करें, आप फायर फाइटिंग का ख्याल करें, आप दीज आर द 4 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप थर्मल इंसुलेशन, एकॉस्टिक इंसुलेशन, इन सब चीजों का ख्याल करें। तो ये सारे वर्कआउट सब करके आप इंजीनियर, आप अपने प्रोफेशनल जहां पे आपको ये सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। एंड वंस यू गेट द डिजाइन, यू गेट द ट्री ऑफ योर हाउस, यू सी कि कैसा क्या सब कुछ, एंड यू लाइक इट, एंड आफ्टर दैट जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसमें आप एक प्रोफेशनल बोलते हैं डेवलपर के पास जाएं, जो कि उस जो डिजाइन है उसको प्रोफेशनल वे में एग्जीक्यूट करे। नॉट कि जो जिस तरीके से हम हैफेजटली चीजों को, फिर उसमें गलतियां होती हैं, वो सब होनी नहीं चाहिए। एक वैसा भी कुछ सिस्टम हो कि वो उसे प्रोफेशनली ले और वो भी एक स्मूथली वो चीज चले। ये वर्कआउट करना क्लाइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डिजाइन वो बना रहा है वो एग्जीक्यूट भी हो जाए, वैसा ही हो फ्रॉम स्ट्रक्चर पार्ट टू इंटीरियर पार्ट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कश्मीर, जो कि मैं अपनी तरह से कहना चाह रहा हूँ ये कि हम देखते हैं कि वो सब फलाइन बनो मकान, वो खतरनाक तौर जो दब लगान तौर ऐसे होता है, ऐसा पीपल हैव। लेकिन उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो विंटर्स में उसकी हालत अलग होती है। अपनी डिजाइन को मिनिमलिस्टिक रखो। मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो हायर क्लास हैं, दे हैव देयर, ऑब्वियसली दे कैन इन्वेस्ट ऑन मनी ऑन एलिवेशंस।
मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं मोस्टली, कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन रखो। जो आप पैसा एलिवेशन लॉट ऑफ थिंग्स पे खर्च कर रहे हो ना, अपनी अंदर घर के अंदर वो इंटीरियर्स में इन्वेस्ट करो, एक कंफर्टेबल होम बनाओ। एंड जो मैंने पहले भी कहा, गेस्ट्स के लिए नहीं, अपने लिए घर बनाओ। ठीक है, मैं अगर अपने घर की बात करूंगा कि इफ आई हैव टू, मैं इंशाल्लाह जब मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, आप देखेंगे बाहर से सिंपल एक चार दीवारी होगी, बट वंस यू एंटर द हाउस यू विल फील दैट देयर इज समथिंग, नहीं इसने कुछ किया है। दैट्स इट। Okay, mashallah. So, which are the most of the projects which you are proud of and why? There are actually number of projects. The one project that is in Drang, Okay. that was a renovation project. जिस स्केल पे मैं उसको देख रहा था ना कि ये क्या होगा, उसने उससे आई थिंक 100 टाइम्स बेटर मुझे, मतलब आई विल सी द जो बना है ऑन ग्राउंड, तो दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, आई कैन से। Okay, so what's the one design trend you wish that should disappear in Kashmir? रूफ, Okay. रूफ डिजाइन्स Mhm. इतने कॉम्प्लिकेटेड जो हैं, Mm-hmm. तो वो एक मिनिमलिस्टिक जितना हो उतना अच्छा होगा। Okay, so modern, traditional, or fusion? Which style will you prefer? फ्यूजन। Okay, and why? अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, आई थिंक थोड़ा सा मॉडर्न चीजें अडॉप्ट करना जरूरी है। Okay. तो So, if you will design the dream project of your life, where would it be? तुर्की। In Turkey, you want to do Yeah. it? MashaAllah. So, what's the most underrated element in Kashmir and that people should know about? MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पार्ट, Mm-hmm. जिसको बहुत वो मतलब अंडररेटेड है, Mm-hmm. तो आई थिंक उसको बहुत ये मिलना चाहिए। मैकेनिकल का ये है कि जैसे कि आपका वट एवर देयर इज इंटरनल सेंसर्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपको इन लाइक सिक्योरिटी में काम आएंगे, Mm-hmm. आपके जैसे कोई भी इमरजेंसी हो उसमें काम आएंगे, घर का जैसे कभी आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, उसके लिए अब आपको सर्विस लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल की। प्लम्बिंग ऑब्वियसली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अक्सर सुनते हैं कि पाइप का ये हो गया, वो हो गया, विंटर्स में ये मसला है, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। So before wrapping up, Tahir bhai, I just want to give your ideas about the aesthetics, what has been done here. That's the Doji is a floor home. So how's the place as an interiors and in terms of the construction, what they have done? Construction is nice and the interiors, I loved the indoor plants, and मैं plants का बहुत शौकीन हूँ, Mm-hmm. so they have done it nicely and it's very beautiful. Okay, when I see that in Kashmir, this is one of the first homes I have seen, as in guest houses, where there are this much of plants, right? Exactly, true. We haven't seen I have these not plants. seen this much of plants in any hotel or something like this. Right. So yeah. So for the audience, I will just say, if you are planning to invest in Kashmir, please consult us. And for the designing part, you can go with Mr. Tahir, which is also called as DTD here in Kashmir. And thank you.